हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 6 ohm एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7 ohm एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी 4 ohm, 4.5 ohm, 5 ohm and 5.5 ohm. Question number 2, the current in a wire varies with time according to the equation I is equal to 4 plus 2t, where I is in ampere and t is in second. Calculate the quantity of the charge which has passed through a cross section of the wire during time t is equal to 2 second and 2 6 second. 12 coulomb, 16 coulomb, 48 coulomb and 24 coulomb. The electric intensity E, current density J and specific resistance K are related to each other through the relation E is equal to J by K, E is equal to JK, E is equal to K by J, K is equal to JE. Calculate the question number 4. Calculate the value of current I in the circuit shown in the figure. This is I 3 ampere, 9 ampere, 5 ampere minus 3 ampere. Solution. Question number 1. The resistance of a conductor is 6 ohm at 50 degree centigrade and 7 ohm at 100 degree centigrade. Resistance of the conductor at 0 degree centigrade will be 4 ohm, 4.5 ohm, 5 ohm and 5.5 ohm. जो फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T. RT resistance at T degree centigrade, R0 resistance at 0 degree centigrade. First 6 ohm is resistance at 50 degree centigrade. T is 50. R0 1 plus 50 alpha 6. Equation number 1. Similarly, equation number 2, 7 is R0 1 plus 100 alpha. Equation number 2. R0 कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस 50 अल्फा इज 6 बाई R0 और 50 अल्फा इज इक्वल टू 6 बाई R0 माइनस 1 और 6 माइनस R0 बाई R0. 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 अल्फा इज इक्वल टू 12 माइनस 2 R0 बाई R0. Equation number 3. From equation number 2, 1 plus 100 alpha is equal to 7 by R0 और 100 alpha is equal to 7 by R0 minus 1, 7 minus R0 by R0. Equation number 4. तो इक्वेशन नंबर 3 and 4 की लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी. 12 माइनस 2 R0 बाई R0 इज इक्वल टू 7 माइनस R0 बाई R0. R0 से R0 क्रॉस हो गया. 12 माइनस 2 R0 इज इक्वल टू 7 माइनस R0 और 12 माइनस 7 R0 प्लस 2 R0 माइनस R0, तो R0 5. तो R0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो 5 ओम. C is correct option.
Question number 2. The current in a wire varies with time according to the equation I4 plus 2t, where I is in ampere and t is in second. Calculate the quantity of charge which has passed through a section of a wire during time t is equal to 2 seconds to 6 seconds, 12 coulomb, 16 coulomb, 48 coulomb and 24 coulomb. तो I की वैल्यू है I इज इक्वल टू 4 प्लस 2t और I होता है डी क्यू बाई रेट ऑफ चार्ज फ्लॉन 2t. डी क्यू इज इक्वल टू 4 प्लस 2t इंटू डी टी. जो टोटल चार्ज फ्लॉन होगा Q, हम इंटीग्रेशन कर दें 2 सेकंड से 6 सेकंड, 4 प्लस 2t इंटू डी टी. तो जो इंटीग्रेशन होगा 4t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, 6/2 और 4t प्लस t स्क्वायर 6, 2 to 6, 4 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 24 प्लस 36 माइनस 8 प्लस 4, 60 माइनस 12, 48 कूलाम. तो जो चार्ज फ्लोन होगा वो होगा 48 कूलाम. C is correct option. Question number 3. The electric intensity E, current density J and specific resistance K are related to each other through the relation E J by K, E J by K, JK, E K by J, K is J by J into E. जो एक सपोज एक वायर V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया. इसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, E इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज वोल्ट. इसका रेजिस्टेंस R, तो E की वैल्यू होगी E विल बी इक्वल टू V बाई L और V इज इक्वल टू E L. क्वेश्चन नंबर 1. करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A और करंट इज इक्वल टू J इंटू A. इक्वेशन नंबर 2. रेजिस्टेंस होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी R K और K इंटू L बाई A और R की वैल्यू होती है V बाई I इज इक्वल टू K L बाई A. V की और I की वैल्यू हमने ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पुट कर दी, तो दिस इज EL और दिस इज J इंटू A इज इक्वल टू K L बाई A. L से L क्रॉस हो जाएगा, A से A क्रॉस हो जाएगा, E बाई J इज इक्वल टू K और E इज इक्वल टू JK. तो E की वैल्यू जो है J इंटू K के इक्वल होगी. B इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4.
calculate the value of current I in the circuit shown in the figure 3A, 9A, 5A minus 3A. सपोज ये जंक्शंस हैं, दिस इज P, Q and this is R. According to the Kirchhoff's law, first Kirchhoff's law, किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो अगर P को कंसिडर करें तो यहाँ इनकमिंग करंट है 4A एंड 2A, तो यहाँ से आउटगोइंग करंट सपोज दिस इज I1 जाएगी. तो I1 की वैल्यू होगी 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 एम्पियर. यहाँ पर करंट इनकमिंग करंट इज 6 एम्पियर, आउटगोइंग करंट इज 1 एम्पियर क्यू पर. तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग का टोटल इज इक्वल. तो दिस इज 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर. दिस इज I2. अब R को कंसिडर करें तो यहाँ पर जो है 5 एम्पियर करंट आ रही है और 2 एम्पियर जा रही है. इट मीन्स कि करंट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 5A माइनस 2A इज इक्वल टू 3A. और I की डायरेक्शन अपोजिट है, इट मीन्स I की वैल्यू हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस 3A. This D is correct option.